السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کی شام کے اوقات میں روزے کے بعد جو ہے وہ شاپنگ سینٹروں کا رخ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں پر اس کے ساتھ شہر میں اس ٹائم پیدا ہو جاتا ہے وہ ہے لوگوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ میں لوگوں کی اکثر شکایت ہے جی اوور چارج کیا جاتا ہے، اور وہ جو لیگل جگہ ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پر پارکنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹریفک پولیس کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو انہی تمام چیزوں کو لے کے آج ہم موجود ہیں ڈائریکٹر چارج پارکنگ بلدیہ عظمیٰ کراچی قیوم خان صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی میں جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اس حوالے سے کیا کریے۔ السلام علیکم قیوم صاحب۔ قیوم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو چارج پارکنگ ہے وہ اس ٹائم شہر میں کن کن جگہوں پہ کی جا رہی ہے، کون کون سی جو ایریا ہیں وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ڈومین میں آتے ہیں جنہیں وہ جہاں پر چارج پارکنگ آپریٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے ادارے کو پارکنگ کرنے میں جو مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، کراچی میں جو ہے کے ایم سی کی جو پارکنگ ہے وہ 15% ہے۔ باقی پارکنگ جو ہے وہ ٹی ایم سیز کر رہی ہیں، کے ڈی اے کر رہا ہے، اور باقی 15% ہم کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رش زیادہ ہے مارکیٹوں پہ، تو شاپنگ مال پہ بھی رش زیادہ ہے، تو باقاعدہ ہم نے جو پارکنگ دی ہوئی ہے ان میں کچھ والنٹیئر بھی دیے ہوئے ہیں جو ٹریفک کو کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری سٹی وارڈن ہے جو کے ایم سی کی ہے، وہ پارکنگ کو وہ ٹریفک کے فلو کو ڈیل کرتی ہے اور اس کوشش کرتی ہے کہ ٹریفک جام نہ ہو۔ باقی پارکنگ جو ہے وہ ہمارے مختلف روڈس ہیں شہر کے، جینا روڈ ہے، طارق روڈ ہے، شارع فیصل ہے، ابوالحسن اصفہانی روڈ ہے، راشد مناز روڈ ہے۔ اس چاروں ڈسٹرکٹ میں مختلف روڈ ہیں جو ہمارے جس پہ ہم پارکنگ کرتے ہیں۔ اچھا قیوم صاحب، ایک عام جو شکایت ہے وہ یہ کہ جی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو ٹینڈر ہوتے ہیں اس میں 10 روپے موٹر سائیکل کے لیے اور 20 روپے گاڑی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن شہر میں پارکنگ میں جو ہے نا وہ 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے تک موٹر سائیکل کے اور 100-150 روپے تک گاڑی کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا جو اسٹاف ہے کہ جی لوگوں سے اوور چارج نہ کیا جائے، تو کیا حکمت عملی آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہماری ویجیلنس ٹیمیں ہیں، میں خود آن روڈ رہتا ہوں اور ان چیزوں کو چیک کرتا ہوں، اور اگر عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں، موٹر سائیکل کے 10 روپے ہیں اور کار کے 30 روپے ہیں، اور ہماری جہاں پارکنگ ہوتی ہے باقاعدہ وہاں ہماری وردیاں پہنے ہوئے لوگ ہوں گے، کے ایم سی کی جیکٹ پہنے ہوئے ہوں گے، کیپ پہنے ہوں گے کے ایم سی کی۔ باقی جو ٹی ایم سیز کا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، ان کے مختلف ریٹ ہیں، وہ اپنے ریٹ کے حساب سے لیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ریٹ ڈیسائیڈ کریں اور کوئی ایک ریٹ رکھے تاکہ عوام کو جو ہے مشکلات نہ ہوں۔ اچھا قیوم صاحب، ابھی جب سے نیا بلدیاتی نظام آیا ہے اور ٹاؤن میں جو ہے شہر کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ یہ کمپلینٹ آ رہی ہیں کہ وہ لینڈ یا وہ روڈ جو ہے وہ آکشن میں تھا، کے ایم سی کے پاس انہوں نے آکشن بھی کیا، لیکن اس کو وہاں پر انکروچ کیا ہوا ہے ٹاؤن نے، جیسے کہ سفورہ ٹاؤن کے حوالے سے یا دوسری جگہوں سے یہ کمپلین ہے کہ جی کے ایم سی نے آکشن تو کروا دیا لیکن وہاں پر وہ فزیکل پوزیشن نہیں دلا سکے انہیں۔ اصل میں جب ٹی ایم سی کا قیام ابھی آیا تو کچھ غلط فہمیاں ہیں ٹی ایم سیز میں، اور ہم انہیں کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ٹاؤن جو ہے وہ ان کے پاس ہے تو اس کی ساری چیزیں ان کے پاس ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو انٹرنل روڈ ہیں وہ مینٹین کرتے ہیں، اس کی لائٹیں مینٹین کرتے ہیں، اسی طرح جو مین روڈ ہیں وہ کے ایم سی مینٹین کرتی ہے ان روڈوں کو، ان کی لائٹیں مینٹین کرتی ہے، ان کے سروس روڈ مینٹین کرتے ہیں۔ تو وہاں کی وال ٹو وال کے ایم سی کی جو ہے وہ مین روڈ ہے، اور انٹرنل وال ٹو وال جو ہے وہ ٹی ایم سیز کی ہیں۔ لیکن وہ چونکہ صفورہ ہے، تیسر ٹاؤن ہے اور اس طرح کورنگی ٹاؤن ہے، یہ مطلب ابھی غلط فہمی کا شکار ہیں، جسے ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور ان کا اپنا اپنا ایک الگ طریقہ ہے اور اپنی اپنی جگہیں ہیں، تو ہم ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جناب یہ جگہیں ہماری ہیں، تو اس پہ ہم ہی پارکنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کا روڈ بھی ہم بنائیں گے، اس کی لائٹیں بھی ہم مینٹین کریں گے۔
تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. میئر صاحب اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اس کو ہم کور کر لیں گے. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کتنا ریونیو جو ہے پارکنگ ڈپارٹمنٹ سال کا جنریٹ کر رہا ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے؟ دیکھیں، ہم جو ہے 14 کروڑ روپے جو ہے تقریباً ہر سال جو ہے جنریٹ کرتے ہیں 15% پارکنگ پہ. اور چونکہ روڈ پہ جو پرابلم چل رہی ہیں، بتگیری، مختلف مافیاز چل رہی ہیں، عموماً دیکھا گیا ہے کہ 30 روپے لے رہے ہیں موٹر سائیکل کے، 50 روپے لے رہے ہیں کار کے. میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب کی واضح انسٹرکشن ہے کہ ان بھتہ خوروں سے نجات دلائی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو باقاعدہ اس کے لیے ہم نے ویجیلنس ٹیمیں بنائی ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ وائز جو ہے چھاپے مار رہی ہیں. خود میں بھی چھاپے مارتا ہوں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیتے ہیں. اچھا، ہماری جو ان لیگل پارکنگ ہے ایسی ہمارے روڈ پہ کوئی ان لیگل پارکنگ نہیں ہے، تو ساری ہماری پارکنگ ہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو قابو کر لیں گے. یہ بھتہ گیری ختم کریں گے اور جو روڈ پہ جو پیمنٹ ہوتی ہے 10 روپے اور 30 روپے وہ اسی پہ لائیں گے انشاءاللہ. یہ تھے قیوم خان صاحب، سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ بلدیہ عظمیٰ کراچی. ان کا کہنا یہی ہے کہ اس ٹائم ان نامساعد حالات میں بھی چارج پارکنگ جو ہے وہ سالانہ 14 کروڑ روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. سڑکوں پہ کچھ پرابلم ہیں جو ڈومین میں KMC کی آتی ہیں، وہاں پر کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ویجیلنس ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں جو گائے بگائے اپنے آپریشن کرتی رہتی ہیں. اور ہمیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے اس بات کی بھی یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں شہر کراچی میں وہ 15% جگہ جس پہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پارکنگ ہوتی ہے اس کو بہتر انداز میں کیا جائے اور بہتر انداز میں کیا جائے گا تاکہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہو جائیں. شہر میں قائم بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہسپتالوں کو بہتر بنانے اور عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. یہ کہنا تھا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا. سرفراز رفیقی شہید ہسپتال میں ذیابیطس، ENT، پیٹس اور جنرل سرجری کلینکس کے افتتاح کے موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سابقہ دور میں ایسے بہت سے کام ہوئے جن کی وجہ سے آج ہمیں تکالیف کا سامنا ہے. اگلا 3.25 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر یہ تمام کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ وہ جو مافیا والے ہیں وہ ہم سے خائف ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کو استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ التجا کرنا چاہوں گا، یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیا جائے. دوائیوں کی عدم فراہمی یا زیادہ قیمت کے حوالے سے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ خریداری کے ساتھ ساتھ ادویات کے معیار بھی ہماری ترجیحات میں سے ہیں جسے بہتر بنا رہے ہیں. دوائی جو ہے نا وہ کم قیمت پر نہیں ملنی چاہیے، وہ کوالٹی پر ملنی چاہیے. یہ جو ہمارا پروکیورمنٹ کا نظام ہے اس میں بھی نقص یہ ہے کہ مجھے ایک مثال کے طور پہ پیناڈول لینی ہے، اس کی جب بڈنگ ہوگی نا تو کوئی بندہ اس کے لیے 10 روپے کوٹ کرے گا، کوئی 8 روپے کوٹ کرے گا، کوئی 7 روپے کوٹ کرے گا. اگر میں 7 روپے والے سے لے لوں گا کیونکہ قانون یہ کہتا ہے مجھے لوئسٹ بڈ پہ جانا ہے، پرابلم یہ ہوگی کیا پتہ 7 روپے پہ کوالٹی اس کی وہ نہ ہو. تو اس پہ نا ہمیں پرائس سے زیادہ کوالٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عباسی شہید ہسپتال کا ادویات کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا سالانہ، وہ 18 کروڑ روپے کی ایک مجھے فگر بتایا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی صحت اور طبیعت کے لیے دعا کی اور کہا کہ وہ جلد حافظ نعیم کے گھر جا کر ان کی عیادت کریں گے. اللہ تعالیٰ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اچھی صحت عطا فرمائے. مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا ان کی تکلیف کے حوالے سے، لیکن اچھی خبر یہ جو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ اینجیوگرافی کے لیے گئے تھے، پھر اینجیوپلاسٹی فوری طور پر کر دی گئی اور میرے خیال میں آئندہ چند روز میں وہ صحت یاب ہو کے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے جائیں گے. میئر کراچی نے رفیقی شہید ہسپتال میں مختلف کلینکس کا افتتاح کیا. کیمرامین سرفراز علی کے ساتھ آصف نفیس، TV ٹوڈے کراچی. لائنز ایریا میں KMC ٹاؤن اور علاقہ تھانہ بن گیا تجاوزات کا سرپرست. 250 سے 300 روپے روزانہ فی ٹھیلا بھتہ دینا لازم ورنہ ٹھیلا نہیں لگ سکتا. 2 روز قبل بلدیہ عظمیٰ کراچی جمشید ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر شکیل شیخ اور ان کی ٹیم کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے فوراً بعد تجاوزات دوبارہ سے قائم ہو گئیں. ہاں پیسے دیتے ہیں نا، KMC وغیرہ DMC سارے پولیس سارے لے کے جاتے ہیں. ٹوٹلی 4-5 ادارے ہیں.
250 रुपये रोज के फी गाड़ी से लेते हैं, थाने का भी बीच में, सबके मिक्स हैं, 4-5 इदारे हैं। फल फरोश का कहना था कि नाजिम और मुन्ना केएमसी और थाने के बीटर हैं, रोजाना शाम में आकर पैसा जमा करते हैं। हमें मालूम है कि इन्हें हमसे पैसे मिलते हैं, ये हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। पुलिस वाले 100 लेके जाता है, एक 150 लेके जाता है। डीएमसी की 150 जाती है और पुलिस वाले की 100 जाती है। बीटर का नाम है एक मुन्ना, उसको बोलते हैं, दूसरे का नाम है निजाम। जी हाँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्यू प्रिटी स्ट्रीट लाइन्स एरिया पे, जहाँ पर 3 दिन कबल बल्दिया उज़्मा कराची के लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ठेले पथारों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, लेकिन दोबारा से ये ठेले पथारे उसी तरीके से कायम हैं। यहाँ पर हमारी जब बात हुई है इन ठेले वालों से, तो उन्होंने कहा जी डीएमसी, केएमसी, ब्रिगेड थाना, हम रोज़ाना तकरीबन 250 से 300 रुपये फ़ी ठेला जो है इन तीनों लोगों को देते हैं। किसी को 150 रुपये जाते हैं, किसी को 100 रुपये जाते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से यहाँ पर इस टाइम जो है ना दोबारा से ठेले पथारे लग गए हैं। कैमरामैन सफाद अली के साथ आसिफ नफीस, टीवी टुडे कराची। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गुलबर्ग टाउन के महकमा एजुकेशन यानी महकमा तालीम के एक मुलाजिम हैं। जी हाँ, और ये दुनिया से निकलने में कामयाब हो गए। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इनका नाम है अब्दुल गफ्फार। और हैरान कुन बात ये है कि इन्होंने दुनिया क्यों छोड़ी, ये सवाल पैदा होता है। कोई अपनी खुशी से दुनिया नहीं छोड़ता। अब्दुल गफ्फार जो कि महकमा तालीम से ताल्लुक रखते हैं, इन कैंसर था। जी हाँ, इनको कैंसर था और ये कैंसर के इलाज करवा रहे थे। परेशानी के आलम में थे कि जनवरी की तनख्वाह जो फरवरी में आई तो 40,000 रुपए मुख्तलिफ सरकार राइजुल वक्त महकमा तालीम के अफसरान ने काट लिया। जी हाँ, कटौती कर दी। ये जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हुए। जी हाँ, तौहीन अदालत के मुर्तकिब। अदालत कहती है कि किसी मुलाजिम की तनख्वाह आप नहीं काट सकते, लेकिन ये कि महकमा तालीम और बल्दियाती इदारों में जो अफसरान होते हैं, ये अदालत तौहीन अदालत तो मामूल के मुताबिक करते हैं, इसलिए कि इनका सरबरा लोकल गवर्नमेंट तौहीन अदालत का किंग है, बादशाह है। जी हाँ, लेकिन गुलबर्ग टाउन के ये अब्दुल गफ्फार दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए कि इनको दिली सदमा था और ये परेशान थे। इलाज मालजे और उसके बाद घर का किचन लाना, बीवी बच्चे वो कहाँ से लाएं। तो यकीनी तौर पर वो परेशानी की हालत में थे। उन्होंने एक साहब से राब्ता किया और राब्ते करने वाले शख्स ने, हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसने गुलबर्ग टाउन पहुंचकर फारूक नेमतुल्लाह से मुलाकात की और उनको बताया कि मौसूफ कैंसर के मर्ज में मुब्तला और इनकी महकमा तालीम के अफसरान ने तनख्वाह काट ली है, जिस पर वो बेहद परेशान है। फारूक नेमतुल्लाह ने फौरी तौर पर हिदायत की कि वो एक एप्लीकेशन यानी दरखास्त उर्दू में लिख के तब जमा कराएं, हम इस केस को हर हाल में देखेंगे, ये ज्यादती नहीं होने देंगे। बहरहाल उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी यानी दरखास्त लिखी डायरेक्टर एजुकेशन को और दे दी, लेकिन वो सरखाने की नजर होती चली जा रही थी, जिस पर उन्होंने साहब से राब्ता किया जिनका हम नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एक दफा फिर फारूक नेमतुल्लाह जो के सरफराज हैं गुलबर्ग टाउन में और यूनियन काउंसिल 8 के चेयरमैन भी है, माजी के टाउन नाजिम भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि दरखास्त यहाँ जमा कराएं, जिस पर वो दरखास्त चेयरमैन सेक्रेटरिएट में जमा करा दी गई। ये 4 मार्च का वाकया है। दरखास्त जमा हो गई, लेकिन उनकी 10,000 की कटौती फिर भी कर दी गई थी। महकमा तालीम में यकीनी तौर पर पैदागीर अफसरान बैठे हुए हैं, उन्होंने ये जुल्म कर दिया, लेकिन वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि 55,000 रुपए तनख्वाह हो, उसमें बिजली गैस का बिल हो, राशन हो और रमजानुल मुबारक हो, और फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ हो और 40,000 रुपए कट जाए, तो उसकी तो चीखें निकली। तो वो दुनिया से नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। वो अच्छा वो चला गया, अपनी बीवी को छोड़ गया है, बच्चों को छोड़ गया है। ये शख्स यकीनी तौर पर परेशान था, लेकिन गुलबर्ग टाउन में रमजानुल मुबारक से 2 दिन पहले क़िरात के मुकाबले हुए थे, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। ये हमारे बराबर में आके बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा गिला नहीं किया था। तहम एक खातून टीचर जरूर हमारे पास आई थी, जो अब ये तो मरहूम चले गए, लेकिन गवाह थे कि उन्होंने बड़ी मोटी आंखें बाहर निकाल कर सबसे पहले तो हमारी क्लास ली, आप भी तमाम साफियों की तरह है यानी पैदागीर, और उसके बाद हमारे तन बदन में लगी आग, और लेकिन हम फिर खामोश रहे कि टीचर है, खैर जैसी भी है टीचर है। और उन्होंने बताया कि हमारी तनख्वाह जनवरी में कटी थी, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। हमने कहा कोई बात नहीं, हम जरूर भूल गए थे, लेकिन यकीन जरूर आपने याद दिलाया, हम आवाज उठाएंगे और चेयरमैन से भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इन असातिज़ा को नहीं मालूम, इन टीचरों की वजह से 2018 में साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह आग तो जिसने महाजिर कौम की सफेद कुर्ता और पजामा पहन के जो लूट मार की थी, उससे आज लाखों रुपए किराया वसूल करके अपनी बीवी बच्चों और माँ को भी खिला रहा है, और दोस्त यारों भी उससे माल खा रहे हैं, लूटी हुई दौलत महाजिरों की लानत उन पर। लेकिन बहरहाल उसने मेरी नौकरी खाई थी इन टीचरों की वजह से। TTI बल्दिया कोरंगी में प्रोग्राम करने की सूरत में मुझे नौकरी से चेयरमैन ने बरतरफ करवाया था। अजियत हमने भी उठाई है, लेकिन इन
टीचरों को कुछ नहीं मालूम, इनको अपनी कव्वाली पता है। कोई बात नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन अब्दुल गफ्फार दुनिया से रुखसत हो गया। दरखास्त आपके सामने है, इसकी कटौती हुई है। मजीद जनवरी में जिनकी कटौती हुई है वो काएं तो हमसे कर सकती हैं और कर सकते हैं, लेकिन दरखास्तें नहीं देते, न अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं। वो हमें सीढ़ी बनाते हैं, हम फिर भी सीढ़ी बनने को तैयार है। लेकिन अल्लाह के वास्ते हम पे इल्जाम लगाने के बजाय सीधे वहाँ दरखास्तें जमा कराओ, वरना अब्दुल गफ्फार तो निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके जिम्मेदारों के खिलाफ हाथ उठा के, दामन उठा के तमाम असातिज़ा इकराम और महकमा तालीम के लोग बद्दुआ दे सकते हैं तो दें, अगर उनमें इखलाकी जुर्रत है तो। कि जिसने इसको रुलाया, जिसने इसको ऊपर पहुंचाया, उसको अल्लाह गारत करे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। मॉडल कॉलोनी टाउन मुज़फ़्फ़र अहमद खान, जहाँ पर लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, वहीं मॉडल कॉलोनी टाउन को क्लीन के साथ साथ और ग्रीन की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुतअद्दिद पार्कों की तैयारी का अमल जहाँ शुरू किया था, वो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में आ चुके हैं। मुतअद्दिद पार्क तो तैयार हालत में है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपनी नर्सरी में ही इन पौधों की अफजाइश के अमल को यकीनी बनाया जाए, जिसका इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मॉडल कॉलोनी टाउन के दौरे के दौरान किया था। बादशाह अब ज़फ़र अहमद खान इस तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और अपनी नर्सरी के लिए हर मुमकिन को दौरे भी करते हैं और महकमा बागात को अलर्ट रखते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, अपनी नर्सरी में आप पौधे तैयार करें ताकि मॉडल कॉलोनी टाउन को ग्रीन किया जा सके। क्लीन, ग्रीन और रोशन मॉडल कॉलोनी टाउन की तरफ चेयरमैन ज़फ़र अहमद खान गामजन है। चेयरमैन ज़फ़र अहमद खान ने नर्सरी के दौरे के दौरान मजीद तजसीन और आराइश के अहकाम जारी किए और पौधों की तादाद को मजीद बढ़ाने और महकमा M&D को लाइट्स लगाने की भी हिदायत जारी कर दी, ताकि मेहनत कश यहाँ काम करते हों तो अंधेरे की बायस वो फिर छुट्टियां न कर जाएं। ज़फ़र अहमद खान ने मॉडल कॉलोनी टाउन ऑफिस और नर्सरी के दौरे के मौके पर सैंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के वर्कशॉप की हुदूद का भी जायजा लिया और बाउंड्री वॉल के अतराफ सफाई सुथराई के अहकाम जारी किए। ज़फ़र अहमद खान चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन एहलिया ने मॉडल कॉलोनी टाउन को ग्रीन, क्लीन और रोशन मॉडल कॉलोनी टाउन के लिए जहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहीं अगर ये नर्सरी बनाने में कामयाब हो गए तो आइंदा साल यकीनी तौर पर मॉडल कॉलोनी टाउन खूबसूरत फ्लावर शो के 1 नहीं 2 या 3 तोहफे तो दे सकती है, और ये इनकी काविशों से ही मुमकिन नजर आ रहा है कि ये तैयारी अगले साल फ्लावर शो की है, जो एहलिया कराची को एक भरपूर तोहफा होगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा है कि तजावुज़ात किसी भी अच्छे माहौल में एक कलंक का टीका होते हैं और तजावुज़ात हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए महकमा एंटी एनक्रोचमेंट को वाज़ेह हिदायतें दी जा चुकी हैं कि वो इस पर कोई गफलत या कोताही नहीं बरते, और यही वजह है कि रमजान मुबारक में भी अफसरान और मुलाजमीन शाहरों और गली महलों की सतह पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौजूद है। और यही वजह है कि आज उन्होंने बिलाल कॉलोनी, जो कि शाह फैसल टाउन का ही हुदूद में आता है, क्योंकि एहलिया शाह फैसल टाउन या शाह फैसल टाउन का हो तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है। और बिलाल कॉलोनी, जो कि शाह फैसल टाउन का इलाका है, यहाँ पर एक नई सड़क तामीर की गई थी, उस पर फिर बाजार लगने शुरू हो गए। अब फिर आपको पता है फिर क्या होता है, काम लग जाता है। लाखों रुपए से बनने वाली सड़क अगर वो बर्बाद हो रही हो तो गौहर अली खटक तो फिर अटकेंगे, और वो अटक गए। उन्होंने महकमा इंसदाद और तजावुज़ात के डायरेक्टर ने ज़ईम खालिद और डिप्टी डायरेक्टर और अफसरान को हिदायत की अमली तौर पर कार्रवाइयों का आगाज कर दें। अब पूरे रमजान शाह फैसल टाउन की हुदूद में यानी शाह फैसल, बिलाल, गुलजार कॉलोनी, अवामी कॉलोनी और मेहरान टाउन में तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर अमली तौर पर कार्रवाई का अमल जारी रखें। लिहाजा आज भी कार्रवाई की गई और अभी तो फिलहाल पहले मरहले में तमाम ठेले वाले, पथारे वालों को जो नई बनने वाली सड़क बर्बादी का बायस बनने जा रहे थे, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन अमल में आ सकता है, जिसमें यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी ली जाएगी। ताहम यहाँ पर एक बाड़ा भी बन गया था, कोई बात नहीं। ज़ईम खालिद ने कहा कोई बात नहीं, रमजान मुबारक है, रोजा भी रख रहे हैं, एक गाय और एक बकरा भी ले आए, लेकिन ये अमानतन है, गाय का दूध पी सकते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए कि सेहत तो जरूरी है। गौहर खटक ने तो दुबला करने की कसम खाई है, लेकिन कोई बात नहीं। ज़ईम खालिद और उनके अमले ने आज कार्रवाई का आगाज किया है, लेकिन जो पथारे और ठेले वाले हैं उनको वार्निंग दे दी गई है और बड़ी कार्रवाई मुतवक्को है। शाह टाउन के चेयरमैन गौहर खटक बिला रंगो नस्ल किसी तफरीक के कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज शाह फैसल टाउन के 1 नंबर और 3 नंबर के इलाकों में भी इन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ की थी। अब बिलाल कॉलोनी में की है, गुलजार में, मेहरान टाउन में भी हो सकती है और फिर शाह फैसल में भी कार्रवाइयाँ सिलसिला जारी रहेगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची।
नाजाबाद में चौड़ी ग्रीन बेल्ट को काटने का काम शुरू कर दिया गया। अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने ग्रीन बेल्ट की कटाई का बड़ा खुशखुसलूबी से एहतमाम करना शुरू कर दिया। ताहम एक शहरी ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी, इसलिए कि शहरी को अंदाजा था कि अगर ये ग्रीन बेल्ट कट जाती है तो इससे तो यकीनी तौर पर नुकसान तो अलग होगा ग्रीन बेल्ट काटने का, और उसके साथ साथ ट्रैफिक के हादसात यहाँ बढ़ेंगे। एक शहरी ने अपना शहरी होने का पक्ष अदा किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुई और नाजाबाद टाउन का महकमा एनक्रोचमेंट हरकत में आया कि ये कैसे और कौन है, क्यों है कि इन्होंने ग्रीन बेल्ट काटना शुरू कर दिया। नाजाबाद का महकमा एनक्रोचमेंट फौरी तौर पर मुतासरा मुकाम पर पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर काम को पहले तो रुकवाता है, और वहाँ पर जितने अफराद इन कामों में मुलव्वस थे उनको फिलहाल वहीं पर रोक लिया जाता है और पुलिस तलब की जाती है ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो कि गैर कानूनी तौर पर ग्रीन बेल्ट को, एक चौड़ी ग्रीन बेल्ट को काटने में मसरूफ थे और एक कट बनाने के चक्कर में थे। जबकि शहरी के मुदाखलत करने पे कि आप कौन लोग हो, उनका कहना था कि हम बल्दी औज़मा कराची के हैं और हम ग्रीन बेल्ट काट रहे हैं। धड़ल्ले से ग्रीन बेल्ट काटने वाले जब महकमा इंसदाद और तजावुज़ात नाजाबाद की टीम पहुंची तो फिर वो ठंडे हो गए, लेकिन नाजाबाद के ज़राए के मुताबिक नाजाबाद टाउन के डायरेक्टर सैनिटेशन और महकमा एनक्रोचमेंट के अमले ने बाकायदा FIR दर्ज करा दी है। कराई नहीं कराई हमें नहीं मालूम, लेकिन ग्रीन बेल्ट काटने का सख्ती से नोटिस ले लिया गया है और कड़ी नजर रखी जा रही है कि वो कौन से अनासिर थे जो ग्रीन बेल्ट को काट कर यकीनी तौर पर एक के साथ कट बनाने के बाद यहाँ जो हादसात होते और इंसानी जानें ज़ाय होती और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती, उसके जिम्मेदारों का भी तयन करना बेहद जरूरी है। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने उम्र की सआदत हासिल करने के बाद अब एहतराम रमजान में यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रोज अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। रमजान गोड में होने वाले इस अफ्तार डिनर में अली अहमद जान के साथ साथ चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील सिया, चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान के साथ साथ जुम्मन दरबान और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात इस अफ्तार डिनर में मौजूद थे, जबकि उलमा इकराम की भी एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है जो कि खुसूसी तौर पर यहाँ आए थे। अफ्तार डिनर के मौके पर उलमा इकराम ने जहां दर्स दिया वहीं पर खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई और पुल की सलामती, सिंध की खुशहाली, मंगो पीर टाउन के लोगों की खुशहाली और हम हिम्मत और इस्तिकामत दे हाजी नवाज बरोही को कि वो इंसानियत की खिदमत को इसी जज्बे के साथ जारी रखें, खुसूसी तौर पर दुआ की गई। अफ्तार डिनर के मौके पर जहां भाईचारगी का खुलकर मुजाहरा देखने में आ रहा था, वहीं पर आने वाले मेहमानों का चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही इस्तकबाल करते रहे। इस मौके पर मंगो पीर टाउन से ताल्लुक रखने वाले अफसरान और उसके साथ साथ मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी अफ्तार डिनर में शरीक थी। रमजान गोड में होने वाले इस अफ्तार डिनर में यकीनी तौर पर मोहब्बत, भाईचारगी का एक मुजाहरा देखने में आया। अफ्तार डिनर यकीनी तौर पर एजाज में था आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए, लेकिन इससे यकीनी तौर पर भाईचारगी के अमल को फरोग मिलेगा और यकीनी तौर पर हाजी जमील जिया, मलिक आरिफ ऐवान हो या जुम्मन दरबान हो या फिर किमाड़ी टाउन के मारीपुर टाउन और जिला किमाड़ी के पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के शेर मौजूद हो, तो यकीनी तौर पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि अफ्तार डिनर में तमाम अहम शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर यकीनी तौर पर आने वाले मेहमानों हाजी नवाज बरोही चेयरमैन मंगो पीर टाउन को दिल की गहराइयों से उम्र की सआदत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कहना शुरू कर दिया। बादशाह आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अफ्तार कराया गया, डिनर कराया गया और खुशनुसलूबी के साथ मंगो पीर टाउन के चेयरमैन का अफ्तार डिनर इख्तिताम पजीर हुआ। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची।